Hello dear students and welcome back to my channel. This video is regarding degree admission. The official notice has already released. This is for students who have passed their intermediate 12th class and now they want to take admission into degree BA, BSc, BCom, vocational, BCom honors, BSW, BBA, BBM and BCA and many other courses. So students can get admission into colleges which are affiliated to Osmania University or Kakatiya University, Telangana University, Mahatma Gandhi University, Palamuru or Satyavahana University, JNTU and many other universities. And if a student wants to do D Pharmacy in Polytechnics which is affiliated to SB TET, now how to pay for this? The online one-time registration you have to do and pay rupees 200, which can be paid through credit card, debit card, net banking, T-wallet or UPI, BillDesk and Atom Technologies. You can pay by visiting the website of dos.cgg.gov.in. So students, this notification came on 13th April and the phase 1 registration has already begun from April 15th onwards. The last day to apply is 7th May 2026 and after that the registrations will close. So before the closing of the registrations, the phase 1 web options will be made available to the students on 30th April. Means you can select which college you want to take admission in the list. And this option will be made open only till 8th May. After that, the web options will also be locked, it will be saved, and then verification for special category certificates at university for physically handicapped will be on 7th May. For NCC means sports candidate student or extracurricular activities will be on 8th May. Then the result for phase 1 seat allotment will come on 14th May. Means which college you got admission. That same college allotment letter you can see after logging in to the DOST website. Now you have to take decision. Do you like the college in which you got allotted or you want to change? If you like it, then go to that specific college, that is called online self-reporting by the seat allotted students. So you have to go to the college with your documents and you have to tell them that you are ready to take admission and pay the required fee, and they will enter online that you have reported and your seat is confirmed. Remember students, if you visit the college, then only your online self-reporting will take place, otherwise not. So the last date to self-report is 23rd May. If you report after that, you will lose your seat. But if you don't want to take admission over there, then you apply for phase 2. The phase 2 registration fee will be double, that is 200 plus 200, that is 400, which will begin from 15th of May to 25th of May. The web options will be made available. Then up till 26th you can arrange your web options, you can edit in between, you can add or delete colleges also. Then verification will happen by 26th of physically handicapped or sports candidates. Then phase 2 seat allotment will take place on 30th May. Then online self-reporting by 31st May to 5th June. Now these degree colleges, they don't start from the month of June, okay? They will start probably later in the month of July. So up till that time, these phases will go on. So if the student doesn't like seat what is allotted in phase 1, they apply for phase 2. If not phase 2, then phase 3. And then there's a special phase also. Okay, so phase 3 registration will begin from 31st of May. The fees is rupees 400 only and it will last up till 15th of June. And web options will open from 31st May to 16th of June. Then verification on 16th for NCC and sports and handicap students. So phase 3 seat allotment will take place on 20th June and online self-reporting from 20th to 25th of June. Then reporting to colleges by students who have already confirmed their seats online, that is self-reporting in phase 1, phase 2 and phase 3 from 20th June to 27th of June, and then later on students orientation in the college. Now orientation means that students are guided about the college, the syllabus, the teachers and so on.
So that should start from 29th of June up till 30th June, and the classes will start for semester 1 on 1st July 2026. So students, in my previous video of those, I have explained in detail in English. But for those students who don't understand properly English, for them I'll explain now in Hindi. तो सबसे पहले आपको स्टूडेंट्स दोस्त की वेबसाइट पर विजिट करना है, जो है dost.cgg.gov.in। उसके बाद में आपको अवेलेबल इंफॉर्मेशन पढ़नी है वेबसाइट के ऊपर। मैं आपको एक बार वेबसाइट पर खोलकर भी बताऊंगी इसके बाद। तो जितने भी कॉलेजेस है, जितने भी कोर्सेज है, उन सब की लिस्ट आपको दे दी जाएगी। चाहे आपको एडमिशन बीए में लेना है, बीकॉम में लेना है, बीएससी, बीबीए, बीसीए, बीबीएम, बीएसडब्ल्यू या फिर डी फार्मेसी। तो जो स्क्रीन पर आप यूनिवर्सिटीज़ के नेम्स देख रहे हो, वो सब यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन ले सकते हो। मोस्टली स्टूडेंट्स उस्मानिया यूनिवर्सिटी के अंडर ही कोर्सेज को चुनते हैं। बहुत रेयर केसेस में अगर वो विलेजेस में रहते हैं या फिर दूर डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं, तब जाकर वो सत्यावाहना या फिर तेलंगाना यूनिवर्सिटी, ऐसे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं। तो चाहे आप कोई भी डिग्री कॉलेज से करो, वो पूरे कॉलेजेस एफिलिएटेड रहते हैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी से। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एक डिग्री कॉलेज है, आप उससे डिग्री करते हो, लेकिन आपको सर्टिफिकेट मिलता है उस्मानिया यूनिवर्सिटी का। इसको कहते हैं एफिलिएशन। ओके, तो दोस्त एप्लीकेशन में आपको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए सबसे पहले एक लॉगिन आईडी बनानी होगी आपको, दोस्त आईडी। और ये प्री रजिस्ट्रेशन होता है कैंडिडेट का, यानी कि फर्स्ट स्टेप होता है एडमिशन का। उसके बाद में एक दोस्त आईडी जब आप बना लेते हो, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करते हो, जो कि है 200 रुपये। तो जब आप फर्स्ट टाइम दोस्त आईडी में रजिस्टर करते हो, तब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक पिन नंबर आता है। वो पिन नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बिकॉज नेक्स्ट टाइम जब भी आप लॉगिन करोगे, उस पिन नंबर से ही करोगे। तो ऐसा मोबाइल नंबर डालना जो कि चल रहा हो, और एंड तक इस पिन नंबर को सेफ रखना आप, एडमिशन प्रोसेस में आपके काम आएगा। मीन्स सिर्फ ऑनलाइन ही, जब तक आपका रजिस्ट्रेशन चल रहा है तब तक। लास्ट स्टेप सिर्फ वेब ऑप्शंस को लॉक करना होता है। एक बार आप वेब ऑप्शंस लॉक कर देते हो, उसके बाद आपको सीट आ जाती है। फिर आप सेल्फ रिपोर्ट करते हो कॉलेजेस में जाकर। तो अभी अभी मैंने जो डेट्स आपके सामने अनाउंस की हैं, वो है रजिस्ट्रेशन, वेब ऑप्शंस और सीट अलॉटमेंट के बारे में। यू ऑलरेडी नो द डेट्स। अब क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है अप्लाई करने के लिए अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में, जो कि दोस्त के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो, वो हम डिस्कस करेंगे। अब एडमिशन प्रोसेस देखते हैं। स्टेप 1 है रजिस्ट्रेशन, दोस्त आईडी बनाना। एक स्टूडेंट जिसके पास ऑलरेडी आधार कार्ड मोबाइल नंबर से कनेक्टेड है, तो वो डायरेक्टली रजिस्टर कर सकता है दोस्त की वेबसाइट पर यूज़ करके OTP ऑथेंटिकेशन। अब अगर स्टूडेंट का आधार कार्ड नंबर मोबाइल नंबर से कनेक्टेड नहीं है, तब ये ज़रूरी है कि स्टूडेंट लिंक करे अपने पेरेंट्स का मोबाइल नंबर उनके आधार कार्ड के साथ। अगर ऑलरेडी लिंक्ड है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आधार कार्ड अपडेट सेंटर में जाकर अपडेट करा सकते हैं, या फिर किसी भी मी सेवा में भी ये काम हो जाता है। अब दूसरा मेथड क्या है कि स्टूडेंट्स जो कि TGBI बोर्ड के अंडर इंटरमीडिएट पढ़े हैं, वो लोग रजिस्टर कर सकते हैं दोस्त मोबाइल ऐप पर, या फिर अगर आपको ज़्यादा स्टूडेंट फ्रेंडली फीचर्स चाहिए तो दोस्त वेबसाइट से ही रजिस्टर कर लेना। इस मेथड में आपको फ़ोटो रिकग्निशन मेथड यूज़ करना होगा, यानी कि अपनी फ़ोटो अपलोड करनी होगी। एक बार स्टूडेंट की फ़ोटो स्कैन हो जाती है, फिर उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है, दोस्त आईडी जनरेट हो जाती है। स्टूडेंट्स उसके बाद आगे का नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं, जो कि है एडमिशन प्रोसेस। तो स्टूडेंट जब रजिस्टर करता है, तो वो रजिस्टर करता है अपने मोबाइल नंबर से। उसके बाद में उसके फ़ोन पर एक 1 टाइम पासवर्ड आता है, यानी कि OTP। फिर वो कंप्यूटर स्क्रीन पर उस OTP को फ़ोन में से देखकर एंटर करता है और सबमिट पर क्लिक करता है। इसके बाद दोस्त ऑथेंटिकेशन सर्विसेज एनेबल हो जाती हैं स्क्रीन पर। अब स्टूडेंट को अपने पर्सनल डिटेल्स एंटर करने होते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में, जैसे कि उसका नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन नंबर, आधार नंबर एक्सेट्रा। उसके बाद जब वो अपनी फ़ोटो अपलोड करता है, तो उसके फेस का रिकग्निशन हो जाता है। उसकी लाइव फ़ोटो मैच करती है सिस्टम के रिकॉर्ड्स के साथ। दोस्त आईडी जनरेट हो जाता है, और फिर स्टूडेंट पेमेंट करता है ₹200 की, और फॉर्म फिल करता है एप्लीकेशन का। तो अगर फर्स्ट मेथड से आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, तो सेकंड मेथड यूज़ कर सकते हो,
या फिर थर्ड मेथड, जिसमें स्टूडेंट डायरेक्टली मी सेवा सेंटर को चले जाता है, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन देता है, फिंगरप्रिंट या फिर फेस ऑथेंटिकेशन भी करा सकते हैं और उसका दोस्त रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो स्टूडेंट का इस बात का ख्याल रखना है कि जब वो एप्लीकेशन फॉर्म भरे तो पूरे डिटेल्स करेक्ट एंड एक्यूरेट हो। और जब बाद में वेब ऑप्शंस ओपन होंगे यानी कि आपको कॉलेजेस चुनना होगा, तो सबसे पहले उस कॉलेज का नाम डालना जिसमें आपको एडमिशन चाहिए। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप एक ही कॉलेज डालो, आप एटलीस्ट 10 कॉलेजेस या फिर उससे भी ज़्यादा कॉलेजेस लिस्ट में डाल सकते हो। एक बात का ख्याल रखना कि अपना दोस्त आईडी या फिर पिन या फिर पासवर्ड किसी के साथ भी शेयर मत करना, क्योंकि हो सकता है कि वो आपके डिटेल्स के साथ कुछ भी मिस्टेक कर दे। जिसके पास भी आपका आईडी और पासवर्ड होगा वो आपके कॉलेजेस को एडिट कर सकता है, निकाल सकता है और कोई भी कॉलेज को डाल भी सकता है। सो माइंड इट, कीप इट कॉन्फिडेंशियल। तो जो भी स्टूडेंट्स वेब ऑप्शंस में कॉलेजेस को डालते हैं और उन वेब ऑप्शंस को सेव करते हैं, सेव करना इम्पॉर्टेंट है, तो उन्हीं बच्चों को सीट अलॉट होगी। अब सीट अलॉटमेंट किस बेसिस पर होगा कि आपका मेरिट कैसा है, अगर आप रिजर्वेशन के अंडर आते हो या नहीं, तो ये सब गवर्नमेंट रूल्स के ऊपर डिपेंड करता है। सो आई हैड अ स्टूडेंट, वो स्टूडेंट ने गवर्नमेंट कॉलेज में, एक ही कॉलेज में उसने अप्लाई किया था फेज़ 1 में, और फिर उसको वहाँ पर सीट नहीं आई थी। सो हर गवर्नमेंट कॉलेज का अपना एक क्राइटेरिया होता है, अपना एक परसेंटेज होता है, फिर वो एससी एसटी ये सब चीज़ें भी काउंट होती हैं। तो बेटर है कि आप रिस्क मत लो, फेज़ 1 में ही एक से ज़्यादा कॉलेजेस आप डालो लिस्ट में, एटलीस्ट 10 कॉलेजेस आई सजेस्ट, ताकि आपको फिर से फेज़ 2 में अप्लाई करने की ज़रूरत ही ना पड़े। उसमें फ़ीस डबल होती है स्टूडेंट्स। सो एक और स्टूडेंट था जिसने एडमिशन तो ले लिया था, लेकिन उसे पता नहीं था कि उस कॉलेज में वो जो कोर्स वो करना चाहता है वो अवेलेबल ही नहीं है। सो बाद में पछताने की बजाय ये ज़रूरी है कि सबसे पहले आप कॉलेजेस को कॉल करो, जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए वो कोर्स है या नहीं वो भी कंफर्म करो और उस कॉलेज की फ़ीस भी जानो। उसके बाद में ही आप वहाँ के लिए दोस्त में अप्लाई करना, वरना नहीं। कुछ कॉलेजेस की फ़ीस दोस्त एप्लीकेशन पे अलग बताता है, जब आप कॉलेज पर जाते हो तब वो अलग फ़ीस बताते हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट सेटिस्फाइड है उसकी सीट के साथ, तब उसे ज़रूरी है कि वो कॉलेज पर जाए और ऑनलाइन सेल्फ रिपोर्टिंग करवाए, पे करे कंफर्मेशन फ़ीस ऑनलाइन, यानी कि कॉलेज वाले कुछ एडवांस में फ़ीस लेते हैं आपसे। अब ये जो फ़ीस वो लोग लेते हैं वो आपकी साल भर की जो फ़ीस होती है उसी में से ही होता है। बस सिर्फ कंफर्मेशन के लिए आप पे करते हो, आप 1000 रुपीज़, 5000 या फिर 10,000 जो भी कॉलेज वाले बोले वो पे करना। अगर कोई स्टूडेंट अपनी सीट के साथ सेटिस्फाइड नहीं है तब वो दूसरे फेजेस में अप्लाई कर सकता है, जैसे कि सेकेंड फेज़, थर्ड फेज़ एंड सो ऑन, बेटर सीट के लिए। तो एक बार आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है, उसके बाद आप 28 जून से 27 जून के बीच आप जाकर अपनी कंफर्मेशन दे सकते हो। आपको सर्टिफिकेट सबमिट करने होंगे, पूरे 10th क्लास से लेकर अभी तक के जितनी भी आपने पढ़ाई की है, और पे करना होता है रिक्वायर्ड कोर्स फ़ी, जैसे कि मैंने आपको बताया एडवांस पेमेंट थोड़ी सी। अब ये स्टेप्स को कंप्लीट करने के बाद आपकी जो सीट है वो ऑफिशियली कंफर्म हो जाती है। अगर कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है कंप्लीट करने में ये सारा प्रोसेस, तो उसकी सीट कैंसिल हो सकती है, रिमेंबर दैट। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, सीट रिजर्वेशन प्रोसेस और फ़ी रीइम्बर्समेंट। तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है रिजर्वेशन को लेकर, वो फॉलो करते हैं कि स्टूडेंट्स जो है वो सबमिट करें अपने एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि अगर आप एडमिशन ले रहे हो रिजर्वेशन कोटा के अंदर तब आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। अगर आप इनकम सर्टिफिकेट दोगे जो कि इशू किया गया है 1 अप्रैल 2025 के बाद से, जो कि रिक्वायर्ड है दोस्त एडमिशन के लिए, आगे जाकर स्कॉलरशिप के लिए भी हेल्प होता है। देन एनसीसी सर्टिफिकेट या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज सर्टिफिकेट या फिर फिजिकली चैलेंज सर्टिफिकेट, ये सब ऑप्शनल्स है। या फिर कैप, चिल्ड्रन ऑफ आर्म्ड पर्सनल सर्टिफिकेट, ये सब एक्स्ट्राज है। एनसीसी, एक्स्ट्रा करिकुलर, फिजिकली हैंडीकैप्ड और कैप, ये सारे सर्टिफिकेट सिर्फ स्पेशल कैटेगरी स्टूडेंट्स को ही देने हैं, सब स्टूडेंट्स को नहीं देने हैं। तो यहाँ पर कुछ पेमेंट के बारे में डिटेल्स लिखे हुए हैं स्टूडेंट्स। अब जिन स्टूडेंट्स का अलॉटमेंट गवर्नमेंट या फिर यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में हुआ है, जो कि एलिजिबल है ई पास के लिए, उन्हें फ़ी रीइम्बर्समेंट मिलेगा।
और उन्हें ऑनलाइन सेल्फ रिपोर्टिंग जब कॉलेजेस में होती है उस टाइम पर उन्हें फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं है कंफर्मेशन के लिए भी। लेकिन जो स्टूडेंट्स प्राइवेट कॉलेजेस में अलॉटेड हुए हैं और वो एलिजिबल हैं ई पास के लिए, उन्हें फिर भी पे करने होंगे ₹500 ऑनलाइन सेल्फ रिपोर्टिंग के लिए। और जो स्टूडेंट्स अलॉटेड है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या फिर प्राइवेट कॉलेजेस में और जो एलिजिबल नहीं है ई पास फी रीइंबर्समेंट के लिए, उन्हें पे करने होंगे ₹1000 फॉर ऑनलाइन सेल्फ रिपोर्टिंग। अब ये जो फ़ी रीइंबर्समेंट होता है वो ई पास के लिए जो बच्चे एलिजिबल होते हैं यानी कि स्कॉलरशिप के लिए, यानी कि जिन फैमिलीज़ में इनकम ईयरली जो होती है वो कम होती है, तो ऐसे बच्चे एलिजिबल होते हैं स्कॉलरशिप के लिए। सो इट्स इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट्स कि अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तब आप इनकम सर्टिफिकेट ज़रूर बनाना, आपको थोड़ी फ़ीस कम हो जाएगी। और अगर आप एक मेरिट स्टूडेंट हो तब तो आपका और भी फ़ायदा है और फ़ीस आपकी कम हो सकती है। आपको दोस्त से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तब आप हेल्पलाइन सेंटर पर कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये हेल्पलाइन सेंटर्स के नंबर्स हैं। तो dost.cgg.gov.in पर इस तरह आप ये वेबसाइट खोल सकते हो। अगर आप देखो डिग्री ऑनलाइन सर्विसेज तेलंगाना दोस्त, आप यहाँ पर नोटिफिकेशन पर क्लिक कर सकते हो। इसके सारे डिटेल्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं अभी जो मैंने पढ़ा है। आप इन लोगों को कॉल भी कर सकते हो ये टाइम पर 8 AM to 7 PM ओनली ऑन वर्किंग डेज। यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है। आप चाहो तो दोस्त की एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले से या फिर एप्पल स्टोर से अगर आईफोन यूज़ करते हो। तो यहाँ पर स्टेप्स है। सबसे पहला स्टेप है कैंडिडेट प्री रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करते हो तो आपको 3 ऑप्शंस बताता है, तब आप फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना अगर आप घर पर रजिस्टर कर रहे हो, अगर दोस्त ऐप पर तो सेकेंड ऑप्शन, अगर मी सेवा में तो थर्ड ऑप्शन। तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद पिन आएगा, उसके बाद में उस पिन नंबर को आप सेव कर लेना। फिर एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट जो कि स्टेप नंबर 2 है, आप इसके ऊपर क्लिक करना। उसके बाद में आप एप्लीकेशन फ़ी पे कर सकते हो। उसके बाद में आप लॉगिन कर सकते हो दोबारा दोस्त की वेबसाइट पर बाय स्टेप नंबर 3 दैट इज़ कैंडिडेट लॉगिन। कुछ भी डाउट है दोस्त से रिगार्डिंग तब आप हेल्पलाइन सेंटर पर कांटेक्ट कर सकते हो। अब आप कॉलेजेस देख सकते हो कि किस में एडमिशन लेना है। तो ये सारे यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें आप ले सकते हो, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, जो कि उस्मानिया, पलामुरू, सत्यवाहाना, तेलंगाना यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा है। सो टोटल यूनिवर्सिटीज़ है 11। इन 11 में से किसी में भी आप एडमिशन ले सकते हो। अब इसमें एडमिशन लेने का मतलब ये नहीं है कि आपको डायरेक्टली यहाँ पर मिल जाएगा, आपको किसी भी डिग्री कॉलेज में एडमिशन लेना होगा जो कि इससे एफिलिएटेड हो। तो यहाँ पर जो नंबर 3 है कैंडिडेट लॉगिन, ये स्टेप मैं आपको बताती हूँ। एक बार आप इसको खोलोगे उसके बाद में आपको एंटर करना होगा अपना दोस्त का आईडी। उसके बाद में आपके फ़ोन पर ओटीपी आएगा, तब आपका ये जो दोस्त का आईडी है वो TG ऐसा होगा। लास्ट टाइम मैंने 2 इयर्स बैक किया था तो वो TS था उस टाइम पर। तो TG एंड देन द दोस्त आईडी आपका आएगा विथ नंबर्स। इसके बाद आप गेट ओटीपी पर क्लिक करोगे और फिर आपका लॉगिन हो जाएगा दोस्त आईडी में। इसके बाद आप बैक जा सकते हो एंड देन यू कैन सी ऑन स्क्रीन UG कोर्सेज एंड एलिजिबिलिटी। यहाँ पर हर अंडर ग्रेजुएट कोर्स का नाम है यानी कि 3 इयर्स कोर्स। फॉर एग्जांपल आप देखो BA CBCS में आपको इतने सारे सब्जेक्ट्स है, हिस्ट्री, मैथ्स, अरबिक, इंग्लिश, आप चूज़ कर सकते हो अपने टाइप के सब्जेक्ट्स। ओके, विच BA यू वांट टू डू यू कैन डू। तो BSc में भी आपके बहुत सारे ऑप्शंस है। BA में इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, लिंग्विस्टिक्स, क्लासिकल, जो चाहे आप पढ़ सकते हो स्टूडेंट्स। सी इतने सारे टाइप के BA है। BBA में भी बहुत सारी वैरायटीज़ आपको मिल जाएंगी। देन BCom में भी आपको बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। BBM भी है, BCA है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। बट स्टूडेंट्स जब ये कंप्यूटर रिलेटेड कोर्सेज लेते हैं तो उसमें प्रोग्रामिंग जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं और उसमें वो यूजुअली फेल होते हैं बिकॉज उन्हें बेसिक्स ही नहीं पता होते हैं कंप्यूटर्स के। और कॉलेजेस में भी कुछ ख़ास बताया नहीं जाता क्योंकि टीचर्स को खुद ही पढ़ाने नहीं आता ज़्यादा अच्छे तरीके से। ओके, तो अगर आपको ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है C लैंग्वेज का या फिर प्रोग्रामिंग का तो बिल्कुल भी ये सब्जेक्ट्स मत लेना आप। अब यहाँ पर देखो BCom में ही इतनी सारी वैरायटीज़ हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स ना BCom फाइनेंस में इंटरेस्टेड होते हैं बिकॉज वो फिर बाद में जाकर MBA फाइनेंस करते हैं।
जो कि करियर के लिए बहुत अच्छा है। इवन बीकॉम टैक्सेशन, फॉरेन ट्रेड। तो आपको क्या बनना है उस हिसाब से आप अपना कोर्स चूज करो। देखो बीएससी में भी बहुत सारे एडमिशन्स के ऑप्शंस है। अब जिन बच्चों को एमसेट में सीट नहीं आती है, दे गो डाउन डूइंग बीएससी। अब जो स्टूडेंट्स वोकेशनल कोर्सेज करते हैं उनके लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस है। यू कैन सी ना बीएसडब्ल्यू, ये भी कुछ सालों से चल रहा है, दैट इज बैचलर ऑफ सोशल वर्क। अगर आपको सोशल सर्विस करना पसंद है देन यू कैन गो फॉर दैट। अब एक बार स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। सबसे पहला है कैंडिडेट प्री रजिस्ट्रेशन, देन एप्लीकेशन पेमेंट, देन कैंडिडेट लॉग इन, देन यू हैव टू वेट कि कब वेब ऑप्शंस ओपन होंगे, उस दिन आप कॉलेजेस एंटर करोगे। अगर आप वेब ऑप्शन से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो उसकी लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दी है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो, आपको एक क्लियर कट आइडिया हो जाएगा। अब एलिजिबिलिटी के लिए 40% चाहिए साइंस सब्जेक्ट्स के लिए, बाकी दूसरे कॉलेजेस में डिपेंड करता है। मोस्टली प्रिफर्ड परसेंटेज है 55। लास्ट ईयर ऑल्सो इट वॉज 55% एलिजिबिलिटी, बट स्टिल इट डिपेंड्स ऑन द कॉलेज। ओके, सो कौन से कॉलेज में आप ले रहे हो उसके हिसाब से आपका परसेंटेज भी डिसाइड होगा, लेकिन सेफ परसेंटेज है 55%। तो आप आपका फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का टोटल निकाल कर देखो 55% आ रहा है या नहीं। वो कैसे करना है, आपका जो टोटल आपको आया है फर्स्ट और सेकेंड ईयर का मिला के, वो नंबर को आपको डिवाइड करना है आपके टोटल से। टोटल यानी कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का मैक्सिमम टोटल क्या है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, फर्स्ट ईयर सीईसी में 500 था टोटल, जिसमें से आपको आए 400। तो सेकेंड ईयर में भी सेम टोटल है 500, तो फर्स्ट ईयर का 500 प्लस सेकेंड ईयर का 500, ये हो गया आपके टोटल मैक्सिमम मार्क्स जो कि है 1000। ठीक है, अब आपने क्या स्कोर किया, आपने स्कोर किया फर्स्ट ईयर में 400, सेकेंड ईयर में भी 400, 800। तब आपको क्या करना है, 800 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 100। ऐसा जब करोगे तब आपका परसेंटेज निकलेगा। अगर आप एलिजिबल हो देन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। अब कुछ बच्चे फेल हुए हैं, वो सप्लीमेंट्री एग्जाम लिख रहे हैं, तो आप अपना सप्लीमेंट्री एग्जाम क्लियर करने के बाद दोस्त के फेज 2 में या फिर फेज 3 में अप्लाई कर सकते हो। Students, if you think I was able to help you, then don't forget to hype this video and don't forget to contact me on my Telegram ID if you want easy notes. Do check out the playlist that I gave in the comment section and hit the bell icon to get notified for my next upcoming video.